हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Work of the running water and the underground water. There is a most important chapter. The also important here the point arrive the three function of the rivers. What is the three function of the river here? There is a most important question. The running water is a river. In fact, the land is a three different bay, and this is known as the three function of a river. There is erosion, transportations, and depositions. Throughout its course, the rivers are display all the three activity to show extent. That is the most important here. Here the most important erosion. There is the erosions here. The erosions occur when to the overland flow moves slow particles is a down slope. The weathering and erosions supply this rock material, which is the load of river, and this load act as the grading tool. It is thus the help in the cutting the bottom and sides of the river bed, resulting is the deepening and the weathering of the river channel. Both the cutting and removal of the rock is the deep varies by the river is called the river erosions. The work of river erosion is accomplished in a different ways. All of this is operate together. These four ways are here. The first here is a corrosion and abrasion. The corrosions and abrasions are the most important way here, as the rock particle is a bounce, shark scraps, and the dogs as along to the bottom and sides of the river. They break off the additionally a rock fragment, and this form of erosion is called corrosions. This is the mechanical is the gradings of the rivers against the bank and the bed of the river. Corrosions take place in the two different ways, the lateral corrosions and vertically corrosions. There is a first year lateral corrosions, and this is a side way of erosion which is the widens the river's valley. And second year vertically is corrosions, and this is the downward erosion which is a depend the river valley. There is a most important. And second here there is a corrosions and or solution. There is the most important here. This is the chemical or solvent action of the water on soluble as partly. There is a soluble rock in which with which is their rivers water come in a contact. For example, limestone or calcium carbonate, when it is a come in contact with the water, it is easily dissolved and removed in a solution. That is the most important for corrosion and solution. The next here hydraulic action. That is the most important. This is the mechanical loosings and the sweepings and the way of the material by the shear force of a river water itself. No load or materials is involved in this process. Some of the water is is against the river bank and the enter into the crack, and the crabs is this is a undermines the sharp rock with the which is come in a contact. It's a pick of the loose fragment from it is a bank and the bed and transport them away. The next tier is attriations. Attriations here, this is the wear and the tear of the transported material is a thin self when they rose and coiled with one to another. In the process, the cohesive is a boundaries and the broken down into the smaller piece. The angular is the edges and the smoothness and rounded to from a pebbles. The next area is the transportations. There is the most important. River carry rock or particle from one place to another. This activity is known as the transportations of the load by a river. The load is transported in a four-way. There is a four-way is the most important area. The next is the traction. There is the most important area. The heavier and the larger rock fragment like a gravel, pebble, etc. are forced by the flow of river to the roll along its bed. And this fragment can be seen a rolling, slappings and is a bumpings and the beginning dragging. This process is known as the traction, and the load is called the traction load. That is the most important. And the next here saltation. Saltation is the sum of the fragment of the rock move along the bed of steam by the jumpings or bouncing is a continuously. This process is called saltation. That is the most important.
The next here is the suspension. The suspension is the most important here. The holding up and a small particle like a sand, salt and the mud by their water as the steams flow is called a suspension. That is the most important here. And the next also important is solution. Solution are part of the rock fragment are dissolved in the river water and the transported it. There is the most important and also important their figure that is shown in this. In this diagram, the traction and saltation and suspension, there is the most important. Traction says they are dragging and pushing here, and the second is a saltation, and the show in this diagram, and the suspension is also important. That is important diagram show in this. The next here is deposition. Deposition is also important. When the steams come down from the hill to the plain area, it is slope become a gently. This reduces the energy of the stem. The decreased energy is hampers is a transportation. As a result, part of its load started settling down. This activity is known as the depositions. Depositions take place either due to the decrease in the slope or due to the fall in the volume or velocity of river water. Depositions take place usually in a plain and the low-lying area. When the river join as a lake or sea, the ball of its load of डिपोजिटेड। यहाँ पर जो हम अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर कर रहे हैं बहते जल और भूमिगत जल के कार्य, देखिए ये कई मानने में इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसी के साथ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक आया है नदी के 3 कार्य। साधारण शब्दों में जाना जाए तो नदी के 3 कार्य सभी बच्चों को मालूम होता है, लेकिन यहाँ पर नदियों के 3 कार्य किस रूप में हैं ये जानना बहुत ही रोचक रहेगा, क्योंकि नदियों के क्या कार्य हैं इसे समझने से ही आपको पता लगेगा। प्रवाहित जल या नदी किसी भी क्षेत्र या विशेष के 3 तरह के प्रभावित करते हैं। इन्हें नदी के 3 कार्य के रूप में जाना जाता है। ये कार्य सदैव जो होती है अपर्दन होती है, परिवहन होता है और तीसरा कार्य जो होता है निक्षेपण का होता है। तो ये अपर्दन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और निक्षेपण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट में से माना गया है। कहते नदी के पूरे मार्ग में 3 कार्य चलते ही रहते हैं और नदी अब सदैव ये 3 कार्य करता ही रहता है। अगर बात सबसे पहले हम करें अपर्दन की, तो कहते हैं अपर्दन जो होता है नदी का जल अपने मार्ग में आने वाले शैल पदार्थों के नीचे की ओर ले जाता है। जितने भी शैल होते हैं, जितने भी चट्टाने होते हैं, इसको नदी जो है नीचे की तरफ ले जाता है और नदी के मार्ग में ये शैल पदार्थ जो है अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं के द्वारा आते हैं। यानी पदार्थों के शैल के जो है अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं के द्वारा ये सब आते हैं और इन शैल पदार्थों के नदी का जो है भार कहा जाता है। यानी इसे नदी के भार के रूप में जाना जाता है और यह भार घर्षण के एक औजार के रूप में काम करता है और इस प्रकार यह नदी के तल और इसके किनारों को काटने में काफ़ी सहायता भी करता है। इससे जो है नदी का जो है पाट गहरा और चौड़ा होता चला जाता है। शैल पदार्थों को काटने और उनके हटाने क्रियाओं को नदी के अपर्दन कहते हैं। यानी अपर्दन से आप भली भांति समझ गए होंगे कि अगर इस प्रकार नदी के तल और इसके किनारों को काटने में सहायता करता है और इस नदी की जो है पाट गहरा और चौड़ा होता जाता है, यानी धीरे धीरे जो है नदी की पाट गहरा और चौड़ा होता जाता है, इसे शैल पदार्थों को काटने और उनको हटाने की प्रक्रिया को ही हम अपर्दन के नाम देते हैं। नदी अपर्दन के कार्य 4 तरह से होते हैं, तो ये 4 प्रकार जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहली क्रिया तो यही आता है अपघर्षण। देखिए अपघर्षण क्या होता है, नदियों की धारा में शैल कण जो है उछलते कूदते हुए तथा तली और किनारे को खुरचते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कभी भी अगर आप देखोगे नदियों की धारा में जो शैल होते हैं, जो चट्टाने होते हैं, वो उछलते हैं कूदते हैं और तली और किनारों खुरचते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी मिट्टी को ढीला करते हुए अपने साथ बहा ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में जो है शैल खंडों को जो है तोड़ते चले जाते हैं, जो शैल खंड होते हैं वो टूटते चले जाते हैं और अपर्दन के इस रूप को जो है अपघर्षण कहते हैं। नदी के जो है भार द्वारा तल और किनारों के घर्षण की यह भौतिक प्रक्रिया होती है। अपघर्षण 2 तरीके से होते हैं। पहला तो होता है पार्श्विक अपघर्षण। इस क्रिया द्वारा नदी के दोनों किनारों का अपर्दन होता रहता है। इससे नदी घाटी चौड़ी होती चली जाती है। आपने देखा भी होगा अगर नदी जो है सिंपल है तो धीरे धीरे चौड़ी होती चली जाती है। उसके बाद ऊर्ध्वाधर है अपघर्षण। इस क्रिया में नदी तल का जो अपर्दन होता है और नदी घाट की गहरी होती चली जाती है, यानी इसकी गहराई जो है धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष है क्षय या विलयन। देखिए क्षय और विलयन क्या है? यह नदी के जल के संपर्क में आने वाले घुलनशील या कुछ कम घुलनशील सैलों पर जल की रासायनिक घुलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। यानी आपने देखा भी होगा कि कई जगहों पर नदियों में जो है घुलनशील या कुछ कम घुलनशील सैल पर जल की रासायनिक या घुलने वाली प्रक्रिया का भी प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए जब हम कैल्शियम कार्बोनेट से बना चूने का जो है पत्थर जल के संपर्क में आता है तो यह जो है शीघ्र ही घुल जाता है और नदी से बहाकर ले जाती है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट बात आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो आपको जनरली आपको पता ही होगा कि ये घरों में जो है चूना करने के लिए काम आता है और ये जो होता है बड़े बड़े पत्थरों के रूप में होता है, शैलों के रूप में होता है। और ये शैल जो होते हैं जब पानी के संपर्क में आते हैं तो बिल्कुल ये मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये बह जाते हैं। तो इस तरह से जो है रासायनिक प्रक्रिया के रूप में क्षय का जो है होना एक संभाविक बात बताई गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जल की भौतिक शक्ति द्वारा। देखिए इस प्रक्रिया द्वारा नदी अपनी जो है भौतिक शक्ति से शैलों के ढीला करता रहता है। यानी कुछ भौतिक शक्तियाँ होता है जिसकी वजह से जो है शैलों को वो ढीला करते रहते हैं, यानी चट्टानों को ढीला करते रहते हैं और फिर उन्हें जो है लुढ़काता हुआ बहाकर ले जाता है। इस कार्य में नदी के भार का कोई योगदान नहीं होता है। नदी के धारा का कुछ जल जो है छिट कर किनारे से टकराता है और दरारों में भर जाता है। इससे मुलायम शैल टूट जाते हैं और इन मुलायम जो है और ढीले कणों का एकत्र करके नदी जल अपने साथ बहा ले जाती है। तो ये जर्नली सी बात है। अगर आप देखोगे कहीं अगर नदी के बहाव चलता रहता है तो वो नदी के बहाव जो है पानी के छिड़के भी छिड़कते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा टाइट भी बनते हैं, जिसकी वजह से जो है पानी किनारे पर पड़े हुए पत्थरों पर पड़ते हैं और जो पत्थर थोड़ा ढीला होता है उसमें पानी पड़ता है और इसको और मुलायम कर देता है और यही कारण होता है कि वो टूट कर जो है आगे की तरफ नदियों में बहने लग जाता है। तो इस प्रकार जो है जल की भौतिक शक्ति का प्रयोग करके भी इसका जो है अपरदन किया जा सकता है। उसके पश्चात है यहाँ पर संघ जो है निघर्षण। देखिए इसका क्या अर्थ हुआ? जिन पदार्थों का जल बहाकर ले जाता है वो जब एक दूसरे से टकराते और तली पर लुढ़कते हैं तो उनमें जो है टूट फूट होता ही रहता है, यानी टूट फूट होना एक स्वाभाविक बात है। इस प्रक्रिया में बड़े बड़े शैल खंड छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। नुकीले जो कंकर पत्थर आपस में जो टकरा कर गोले और चिकने बनते चले जाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि नदियों के आसपास बहुत छोटे छोटे पत्थर जो होंगे यानी पेबल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं बातों पर इशारा करता है। तो ये काफ़ी मानने में जो है अपरदन करने का सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीक़ों में से एक माना जाता है। उसके पश्चात है परिवहन। देखिए परिवहन का क्या अर्थ है? कहते हैं नदी शैल पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाता है और इस प्रक्रिया को नदी द्वारा भार वहन कहा जाता है और यह भार 4 प्रकार से ढोया जाता है। देखते हैं 4 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला जो हमारा है कर्षण। देखिए कर्षण क्या होती है? कर्षण द्वारा बड़े तथा भारी शैल पदार्थ जैसे रोड़े कंकड़ पत्थर आदि नदी के जल के बहाव के साथ लुढ़कते रहते हैं, खिसकते रहते हैं। इन शैल पदार्थों के नदी की धारा में लुढ़कते हुए, सरकते हुए, टकराते हुए और घिसटते हुए देखा जा सकता है और इस प्रक्रिया को जो है कर्षण तथा इस भार को जो है कर्षण भार कहते हैं। तो ये बहुत ही साधारण बात है कि रोड़े कंकड़ पत्थर जो है पानी के साथ ले जाते हैं तो लुढ़केंगे, घिसेंगे और इस तरह जो है कर्षण द्वारा ये अपना कार्य संपन्न करेंगे। उसके बाद है बलज्ञन। देखिए बलज्ञन क्या होता है? कुछ शैल खंड नदी तल पर जो है लगातार उछलते हुए चलते हैं और इस प्रक्रिया को जो बलज्ञन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो शैल होते हैं वो उछलते कूदते आगे बढ़ते हैं, तो इसके वजह से भी जो है मिट्टी वहाँ पर ढीला होना एक स्वाभाविक बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता निलंबन। निलंबन क्या है? देखिए रेत गाद और कीचड़ के छोटे छोटे कण पानी में मिले हुए बहते हैं और यह प्रक्रिया निलंबन कहते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है घोलन क्रिया, यानी चौथी क्रिया जो है घोलन क्रिया। अनेक शैल पदार्थ जो है खनिज कण नदी के जल में घुले हुए बहते रहते हैं, इसे हम घोलन क्रिया कहते हैं। अगर इन बातों को अगर हम देखना चाहें तो एक डायग्राम है जिसको आप देख के समझ सकते हो कि ये चारों प्रक्रिया किस प्रकार होती है। देखिए यहाँ पर जो ये प्रक्रिया दिखाया गया है आप देख सकते हो कि कर्षण में देखिए कैसे लुढ़कते हुए, घिसकते हुए, सरकते हुए पत्थर जो है नदियों में बह रहे हैं। दूसरे में बलज्ञन में देखिए ये भी जो है बहुत काफ़ी बता रहा है और निलंबन में जो है देखिए उछलते कूदते हुए जो है शैल पदार्थ दिख रहे होंगे। तो ये डायग्राम भी कई मानने में इम्पोर्टेंट बता रहा है जिसके कारण जो है अपरदन संभव होता है। अगला टॉपिक जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है निक्षेपण। देखिए निक्षेपण क्या है? जब नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में आती है तो इसका ढाल जो है मध्य हो जाता है और इसे नदी में भार ढोने की शक्ति कम हो जाती है
और नदी की शक्ति कम होने से परिवहन में बाधा पड़ती रहती है, यानी परिवहन में बाधा होगी क्योंकि इसकी गति जो होगी धीमी पड़ जाएगी। परिणाम स्वरूप इसके भार का कुछ अंश निक्षेपित होने लगता है और इस प्रक्रिया को जो है निक्षेपण हम कहते हैं। निक्षेपण क्रिया नदी के ढाल मद होने से या धारा का वेग कम होने से या जल की मात्रा घटने से होती है। निक्षेपण क्रिया सामान्यतः मैदान में या नीचे क्षेत्रों में होती है। जब नदी किसी झील या समुद्र में मिलती है तो वहाँ सारा जो है भार अवसाद जमा कर देती है। ठीक है, तो इसे निक्षेपण कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि निक्षेपण क्या है। जब जो है पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में कोई भी जलधारा आती है तो ये मध्य पड़ जाती है, उनकी शक्तियाँ बहुत कम पड़ जाती है, मध्य हो जाती है, और इसी वेग धारा को कम होने या जलवन की घटनाओं से जो निक्षेपण होती है उसे ही हम निक्षेपण की नाम देते हैं, जिसके कारण जो है बहुत मात्रा में जो है अवसाद जमा हो जाता है।